Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. This is the fourth lecture of our course Mobile Ad Hoc Network. In the last week, we covered some issues and challenges that were related with the Mobile Ad Hoc Network. More specifically, those challenges were like some of them were related to the MAC layer and some of them were related with the routing inside mobile ad hoc network, multicasting issues, transport layer issues, and we also see incentive mechanisms that are required in mobile ad hoc network, how to provide quality of services, and the issues related with self-organization and related with mobility, security, addressing and services discovery in mobile ad hoc network. And lastly, we saw some issues that were focusing on energy management and scalability issues of the mobile ad hoc network. In today's lecture, we will be seeing information sharing. In other words, how to share information from a network to another network, or how to send packets from one network to another network, or from one node which lies in one network to another node which lie in another network. So we will be talking about routing protocols in MANET and the issues that are specifically related with the routing approaches in mobile ad hoc network. लेकिन रूटिंग इश्यूज इन मानेट को डिस्कस करने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूटिंग इन जनरल कि नेटवर्क्स की जब हम बात करते हैं स्पेशली नेटवर्क लेयर की ऑफ द TCP/IP मॉडल, तो वहाँ पे द मेन कॉन्सेप्ट इज़ रूटिंग. तो रूटिंग को मानेट में अप्लाई करने से पहले या उसके चैलेंजेस को समझने से पहले वी नीड टू गिव एन ओवरव्यू to the routing mechanism and also the classification of the different routing protocols. So आपको पता होगा जो मेन पर्पस है किसी भी नेटवर्क का, that is to share information. And computers on one network, they can easily share information with other computers on the same network, right? That is not a complicated task. लेकिन जब हम बात करते हैं information sharing की between the systems that does not reside on the same network, so there is going to be a tricky task. A very simple example is कि अगर आप घर के अंदर किसी फर्द को कोई मैसेज देना चाहें, तो दैट इज़ सिंपल. आप उसको कॉल करते हैं, उसको मैसेज दे देते हैं. कॉल मीन आप उसको कहते हैं इधर आ जाओ, मैंने आपसे बात करनी है, दैट्स इट. नाउ सपोज कि आपका एक फ्रेंड है एंड द फ्रेंड इज़ लिविंग इन UK एंड यू हैव अ मैसेज फॉर हिम और फॉर हर. अब आप उसको आवाज़ दे के तो नहीं बुला सकते ना, यू नीड अ कम्युनिकेशन मीडियम. आप उसको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं बाय यूजिंग 3G 4G internet technologies or whatever options you have available there, right? So same is the case with the routing. Routing is simple if the systems if the system exists on the same network, but that is a bit tricky if the system does not reside on the same network. So basic purpose is to share information. तो रूटिंग को अगर हम डिफाइन करें, सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रोसेस दैट अलाउ अ सिस्टम ऑन वन नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम ऑन एनी अदर नेटवर्क. अब इस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि ज़रूरी नहीं कि जो दो सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं दे नो हाउ टू रीच ईच अदर. जिस तरह आप जब किसी फ्रेंड को मैसेज देते हैं, सो यू मस्ट हैव टू नो एटलीस्ट उसका जो नंबर है
वो आपके पास होना चाहिए, उसका जो अकाउंट है, जो ईमेल एड्रेस है, वो आपके पास होना चाहिए in order to send your message. However, in case of routing, the systems they do not require to know how to reach the other system or how to reach the destination. And obviously ये एडवांटेज जो है ये ज़रूरी भी है, क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो वे कि कोई सिस्टम है एंड इट हैज़ टू कीप ट्रैक ऑफ each and every system that exists in the world in order to communicate with it. That is virtually impossible, right, to keep track of all the systems. यानी स्टैटिक इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में जितने सिस्टम्स हैं उनकी रखना, दैट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो रूटिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दो सिस्टम्स का एक दूसरे की लोकेशंस का एडवांस में पता होना वो ज़रूरी नहीं है. पूरी दुनिया में जो सिस्टम्स है उनकी रूटिंग इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रखना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. थिंग्स हैपन डायनामिकली. सो ऑल अ सिस्टम नीड टू नो is how to do or how to communicate with the router residing on its own network. यानी आपका सिस्टम जिस ऑर्गेनाइजेशन में है या जिस सेटअप में है उसको सिर्फ अपने रूटर का पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं किस रूटर के साथ कनेक्टेड हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ दैट इज़ ऑन द शोल्डर ऑफ द रूटर. रूटर जो है वो बाकी आपका पैकेट कहाँ तक पहुँचाना है, कौन सा रूट उसके लिए मोस्ट फिजिबल है, मोस्ट शॉर्टेस्ट है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूटर टू सॉर्ट आउट द थिंग्स फॉर यू. नाउ रूटिंग को आप सिंपली यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि मूविंग अ पैकेट फ्रॉम अ सोर्स नेटवर्क टूवर्ड अ डेस्टिनेशन नेटवर्क थ्रू द बेस्ट पाथ possible or available. That is called routing. Okay, let me revise the definition. Routing is moving a packet from a source network to a destination network through the best path possible or available. इसको हम routing कह सकते हैं. अब ये routing कौन perform करता है? There are special devices जिनको हम routers कहते हैं, and they are responsible for routing the packets from source to the destination or through the intermediate devices present in the network. अब routers जो हैं वो किस तरह इस routing information को perform करते हैं, how they carry out the function of the routing. Basically they use routing protocols, और जो routing protocols है वो खुद algorithms को use करते हैं in order to find the best available path between two nodes or two systems or between source and destination. So in summary, routing, moving a packet from source network to destination network through the best possible path available or exist. और routing को perform करता है router, और router खुद जो है वो routing protocols को use करते हैं, और जो protocols हैं वो algorithms पे base करते हैं in order to find the best possible path for moving the packet from source to destination. Before moving onward, let me ask you a simple question. आप लोगों का बैकग्राउंड चूँकि नेटवर्क्स का है तो आपको पता होगा कि बाज़ोकात हम टर्म यूज़ करते हैं फॉरवर्डिंग ऑफ अ पैकेट, and sometime we use the word routing of a packet, and normally we use these two terms interchangeably, right? So for most of us they are going to be the same things. Routing is equal to forwarding, right? But at a more technical level, do you know what are the differences between forwarding a table while routing a table toward a destination? आपके ख्याल में उनमें क्या differences हो सकते हैं, क्या differences possible हैं? ओके, सो जब हम बात करते हैं फॉरवर्डिंग की, सो फॉरवर्डिंग बेसिकली मीन कि एक्शन जो कि रूटर टेक, द एक्शंस टेक बाय द रूटर वंस इट रिसीव अ पैकेट. तो जैसे ही किसी रूटर को कोई पैकेट मिलता है तो वो इंस्पेक्ट करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को बाय लुकिंग इन अ टेबल,
और फिर उस पैकेट को वो आगे जो है डेस्टिनेशन की तरफ डायरेक्ट करता है, सेंड करता है. दिस प्रोसेस इज लाइक फॉरवर्डिंग. However, a routing refers to the process by which the forwarding tables are built. एक्चुअली इन टेबल्स को रूटिंग या जो टेबल्स हैं या जो फॉरवर्डिंग टेबल्स हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, उनको किस तरह बिल्ड किया जाता है, दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द रूटिंग. फॉरवर्डिंग में हम क्या करते हैं, वी जस्ट लुक अप फॉर डेस्टिनेशन एड्रेसेस इन द रूटिंग टेबल. वाइल रूटिंग इज आल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच टेबल्स. और रूटिंग जो इन टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे नीड एल्गोरिथम्स. ओके, और वो एल्गोरिथम्स जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करते हैं. वो एल्गोरिथम जो है अपने नेबरहुड में कौन कौन से होस्ट जो हैं वो इस रूटर के साथ अटैच हैं, उनको जो है वो डिस्कवर करता है. एंड सो ऑल्सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. तो फॉरवर्डिंग को आप कह सकते हैं कि दैट इज़ लाइक a router लोकल एक्शंस फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट. इनपुट इंटरफेस से आउटपुट इंटरफेस पे पैकेट को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ ओनली द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉरवर्डिंग. लेकिन रूटिंग इज़ समथिंग ब्रॉडर, राइट. इट इज़ लाइक अ नेटवर्क वाइड प्रोसेस जिसमें आप डिटरमाइन करते हैं एंड टू एंड पाथ्स को जो कि पैकेट्स टेक करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. और इसमें हम जो है रूटिंग टेबल को किस तरह बनाते हैं, किस तरह जो है हम वो नेबरहुड को डिस्कवर करते हैं वगैरह वगैरह. सो फॉरवर्डिंग इज़ समथिंग रिलेटेड लोकली कि किस इनपुट लिंक से किस आउटपुट लिंक पे पैकेट को सेंड करना है बाय कंसल्टिंग द टेबल, while routing has a broader concept, but still you can use them interchangeably. ये कोई इतना हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है. एंड अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में आप देखेंगे भी कि कोई जो है वो फॉरवर्डिंग ही फॉर एवर यूज़ करेगा, कोई जो है वो रूटिंग ही फॉर एवर यूज़ करेगा. फॉरवर्डिंग टेबल्स और रूटिंग टेबल्स वो सिर्फ इन दोनों में से एक ही टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं थ्रू आउट देयर बुक. ओके, जब हम बात करते हैं फॉरवर्डिंग द पैकेट्स की या सेंडिंग द पैकेट्स, सो वी हैव डिफरेंट अप्रोचेस अवेलेबल. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द यूनिकास्ट रूटिंग और यूनिकास्टिंग इन शॉर्ट. व्हाट डज इट मीन? दिस इज़ वेरी सिंपल अप्रोच. जिस तरह नाम से जाहिर है, यूनी वन सोर्स एंड यूनी वन डेस्टिनेशन. सो इन यूनिकास्टिंग जो आपके पास रूटर है in the path of the datagram, they will try to forward your packet to one and only one of its interface. Okay, a very simple example. I am delivering a lecture in a physical classroom और मेरे सामने जो है वो 10 स्टूडेंट बैठे हैं. तो अगर मैंने CR को कोई मैसेज देना है तो मैं उसको बुला लेता हूँ और उसके कान में चुपके से कोई बात कह देता हूँ. ओके, कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मैं अपना जो है वो सीक्रेट एजेंट बना देता हूँ, तो उसके कान में मैं कुछ कहता हूँ. अब मैंने उससे क्या कहा, नोबडी नोस. सो दैट मैसेज वाज फॉर दैट पार्टिकुलर पर्सन एंड दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट. सेंडर भी एक है और आपका डेस्टिनेशन भी एक है. इन केस ऑफ रूटिंग, unicast simply refer to the situation where we have only one source and one destination network, right? So जो आपका डेटाग्राम है, रूटर उसको फॉरवर्ड करता है only at one of its interface. इस फिगर को अगर आप देखें, you have different networks and they are attached with one another or linked with one another with the help of routers and also switches. और रूटर स्विच में क्या डिफरेंट है उसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, बट अगर आप इस सेम नेटवर्क को देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, सो वी हैव अ स्विच जो कि 3 सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है. एंड देन अ स्विच इज़ कनेक्टेड विद अ हाई लेवल रूटर एंड देन वी हैव सम अदर रूटर्स जो कि डिफरेंट सिस्टम्स को या नेटवर्क्स को आपस में जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं. नाउ दिस इज़ आवर सोर्स एंड द सोर्स हैज़ अ पैकेट for N6 which is the destination of the packet, and we are using unicasting approach. So source node packet switch को transfer करेगा and then to this router. अब अगर आप इस router को देखें तो इस router के साथ 3 different routers attach हैं, 2, 3 and 4. अब ये decide करेगा कि जो destination है वो इस router
के पास है इस रूटर में लाई कर रहा है या इस रूटर में। सो आफ्टर इंस्पेक्टिंग द टेबल इसको पता चला कि जो डेस्टिनेशन है दैट लाइज 8R4, तो ये पैकेट सिर्फ इस एक आउटपुट लिंक पे या इंटरफेस पे सेंड करेगा टूवर्ड R4। नाउ जैसे ही R4 को पैकेट मिलता है, इस रूटर ने डिसाइड करना है कि उसने पैकेट किस इंटरफेस पे सेंड करना है, आइदर 8.1 or 8 interface 2. So here the R4 send the packet toward the destination by using the interface number 2. So what does it mean? We have a single source and a single destination, and this is an example of unicast. You see the path that is from single source towards single destination. Such a approach is called unicasting or unicast routing. We also have another type of approach in routing, and that is called multicasting. Multicasting mean a message for a group of destinations. यहाँ पे भी सोर्स आपका एक ही होगा, लेकिन जो आपके डेस्टिनेशन है वो a group. Now that is a group. So in this type of communication जो आपका सोर्स एड्रेस है that is a unicast address, लेकिन जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है that is a group address, right? तो इस फिगर्स में अगर आप देखें, अगेन वी हैव द सेम सिनारियो, बट दिस टाइम द मैसेज इज़ फॉर अ ग्रुप, और उस ग्रुप में कौन कौन से जो है वो जो नेटवर्क्स हैं, द मैसेज इज़ फॉर दिस नेटवर्क हेयर। अब यहाँ पे जो रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है, बिकॉज इट हैज़ टू सेलेक्ट के कौन कौन से डेस्टिनेशंस हैं जिन पे मैंने पैकेट को जो है वो आगे फॉरवर्ड करना है। तो जैसे ही पैकेट R1 को मिलता है, रूटर नंबर 1 को, ये इंस्पेक्ट करता है कि इस नेटवर्क पे तो कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट विल सेंड आउट द पैकेट एट इंटरफेस नंबर 2 एंड इंटरफेस नंबर 3। जैसे ही पैकेट 4 को मिलता है, सो 4 देखता है कि द मैसेज is destinated for a system जो कि इस नेटवर्क के साथ भी है, और कुछ सिस्टम जो है वो इस नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है। सो ये इन दोनों लिंक्स पे जो है पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। वाइल इन केस ऑफ R3, डेस्टिनेशन एड्रेस फाइंड करने के बाद R3 को पता चलता है कि जिन सिस्टम्स के लिए ये मैसेज है वो सिस्टम सिर्फ इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो वो 2 पे इसको फॉरवर्ड नहीं करते। द मैसेज इज फॉरवर्डेड ओनली एट इंटरफेस नंबर 1। सो हेयर वी हैव अ ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सिंगल सोर्स होता है और मल्टीपल डेस्टिनेशंस होती हैं। वन मोर थिंग टू रिमेंबर इसके इस अप्रोच में रूटर्स एक्चुअली सेंड कॉपीज ऑफ द मैसेज। एंड व्हाई द रूटर सेंड कॉपीज ऑफ द मैसेज? द रीज़न इज वेरी ऑब्वियस। अगर रूटर एक मैसेज है और उसको एक इंटरफेस पे फॉरवर्ड करे, तो दूसरे इंटरफेस पे वो क्या फॉरवर्ड करेगा? सो दैट इज़ वाई द रूटर कीप अ कॉपी, ताकि इन केस अगर एक मैसेज एक इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दे और उसी मैसेज को दूसरे इंटरफेस पे अगर फॉरवर्ड करना हो तो उसके पास कोई मैसेज जो है उसकी कॉपी जो है वो अवेलेबल हो। आवर लास्ट अप्रोच इज़ ब्रॉडकास्ट, और इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, एंड देयर इज़ वेरी सिंपल अप्रोच बट नॉट वेरी एफिशिएंट वन। ओके, इसमें क्या हम करते हैं कि यहाँ पे इज़ लाइक द कम्युनिकेशन इज़ वन टू ऑल कम्युनिकेशन, सिंगल सोर्स ऑल ऑफ द डेस्टिनेशंस। यानी जो फॉर एग्जांपल उसी क्लासरूम की अगर हम एग्जांपल ले लें, जब मैं CR को कोई मैसेज देता हूँ इंडिविजुअली, सो दैट इज़ यूनिकास्ट। अगर उस क्लासरूम में मेरे पास मेल स्टूडेंट्स भी हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, एंड माई मैसेज इज़ ओनली फॉर द मेल स्टूडेंट, राइट? सो आई विल कॉल देम इन अ ग्रुप एंड विल डिलीवर माई मैसेज टू देम। Or if my message is for the female student only, so I will call them in a group and will deliver my message to them. So that is like a multicast approach. Broadcast में मेल फीमेल जो भी है पूरे क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज सबके लिए है, तो वो मैं अनाउंस कर देता हूँ, राइट? सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट। इंटरनेट में ब्रॉडकास्ट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, एंड देयर आर ऑब्वियस रीज़न वाई वी आर नॉट फॉलोइंग ब्रॉडकास्ट अप्रोच इन द इंटरनेट, एंड द रीजंस आर के इट विल जनरेट अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड आल्सो इट विल कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। सो इंटरनेट में अगर हमें ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम पार्शल ब्रॉडकास्ट को
या कंट्रोल ब्रॉडकास्ट को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फुल ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म. ओके, सो रूटिंग से रिलेटेड एक और टॉपिक, एंड दे आर द दिस इज द टॉपिक इज अबाउट the different types of routing that we have available. Broadly speaking, we can divide the routing approaches into two classes, and they are the static routing and the second one is the dynamic routing. Static routing में क्या होता है? Static routing is an approach जहाँ पे हम forwarding tables को create करते हैं when we start the system, और फिर उन फॉरवर्डिंग टेबल को हम चेंज नहीं करते, या वो टेबल्स जो हैं वो डायनेमिकली खुद को चेंज नहीं करते. अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड हो सो ओनली एडमिनिस्ट्रेटर कैन डू द चेंजेस, और वो चेंजेस उसको मैनुअली करनी पड़ती है. दैट इज़ वाई सच अप्रोच इज़ कॉल्ड स्टैटिक रूटिंग, या इसको आप प्री प्रोग्राम भी कह सकते हैं. यानी जो इस अप्रोच में जो आपके पास फॉरवर्डिंग टेबल्स होते हैं उनको जैसे ही आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो वो फॉरवर्डिंग टेबल जो है आप लोड कर लेते हैं, दैट्स इट. अब उसमें डायनेमिकली अगर नेटवर्क में कोई चेंज आ रही है, कोई नया सिस्टम नेटवर्क को ज्वाइन कर रहा है, या कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क को लीव कर रहा है, या कोई सिस्टम अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंट इन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क. So such type of routing will not be able to accommodate these changes automatically or dynamically. Administrator ने manually सारी चीज़ें खुद करनी होंगी, right? So it is like a not a very flexible approach towards the routing. On the other hand, अगर हम बात करें dynamic routing approach की, so वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके systems हैं उनके ऊपर सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, एंड दे कॉन्टीन्यूसली अपडेट द फॉरवर्डिंग टेबल इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ईच जो आपका पैकेट है इट विल फॉलो द बेस्ट रूट टूवर्ड द डेस्टिनेशन. अगर कोई लिंक नेटवर्क ज्वाइन करता है, अगर कोई नोड नेटवर्क ज्वाइन करता है, अगर कोई नोड नेटवर्क लीव करता है, अगर कोई नोड अपनी लोकेशन को चेंज करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को अगर वो चेंज कर रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन डायनेमिकली वो रिफ्लेक्ट होगी इन द फॉरवर्डिंग टेबल्स. तो वहाँ पे जो इनका ये जो अप्रोच है दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, मोर स्केलेबल, लेकिन इट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस. अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो स्टैटिक रूटिंग की एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है. इसकी अगर हम फर्दर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें स्टैटिक रूटिंग की, तो यहाँ पे जो रूटर हैं दे आर प्रोग्राम्ड फॉर स्टैटिक रूटिंग. उसमें स्टैटिक रूटिंग का सपोर्ट होता है, और वो पैकेट्स को जो है वो फॉरवर्ड करते हैं ऑन प्री डिटरमाइंड पोर्ट नंबर्स और इंटरफेसेस. यहाँ पे रूटर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो डायनेमिकली रूट्स को जो है वो डिस्कवर करें. पहले से पाथ्स अवेलेबल है, बस उन्हीं पाथ्स को हम फॉलो करते हैं. सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सच अप्रोच इज़ मोर सिक्योर बिकॉज वी हैव मोर कंट्रोल ओवर द पाथ्स. आप खुद पाथ्स को डिसाइड करते हैं कि पैकेट्स ने सिर्फ इन ही पाथ को फॉलो करना है. सो यू हैव मोर कंट्रोल ओवर द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क. ओके, सो इसके अलावा जो है सो इट इज़ मोर सिक्योर. इसके अलावा ये इस अप्रोच का जो दूसरा एडवांटेज है कि सच अप्रोच इज़ मोर रिसोर्स एफिशिएंट. क्यों रिसोर्स एफिशिएंट है? बिकॉज ये आपका बैंडविड्थ जो है वो लेस ऑक्युपाई करता है. वाई? बिकॉज इट डजंट वेस्ट the bandwidth in order to find or to update itself to the current network topology, to discover the neighbors who is joining the network, who is leaving the network. तो इस केस में जो है वो बैंडविड्थ को कम से कम यूटिलाइज करता है. बैंडविड्थ के अलावा अदर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल अगर हम सीपीयू साइकिल्स की बात करें, तो अगर कोई रूटर स्टैटिक टोपोलॉजी स्टैटिक अप्रोच को रूटिंग अप्रोच को फॉलो कर रहा है, सो इट विल नॉट वेस्ट सीपीयू साइकिल्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पाथ्स
in order to find the neighborhood, in order to adjust itself to the changing network topology, in order to calculate the best path, the best routes. और तो इस केस में CPU के साइकिल भी कम लग रहे हैं, विच इज़ अनदर रिसोर्स। और इसके अलावा जो है मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी भी इस केस में, इस अप्रोच में हमारे पास जो है वो लेस कंज्यूम हो रही है। सो स्टैटिक रूटिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं कि कंपैरेटिवली ये सिंपल है, नेटवर्क को मोर सिक्योर रखता है। इसके अलावा जो है रिसोर्स एफिशिएंट है, बैंडविड्थ को कम यूटिलाइज करता है, सीपीयू साइकिल कम से कम लेता है, और मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इट विल ऑक्यूपाई लेस मेमोरी एज वेल। इसके अलावा इसको चलाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा रूटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है मोस्टली उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जो है वो मैनुअली जाके कॉन्फ़िगर करे और रूट्स को डिफाइन करे। However, at the other side, that is very inflexible approach because it will not accommodate the network failure or changes in the topology. जिस तरह मैंने कहा कि अगर if a new node join the network or if an existing node leave the network or change the location or change the point of interest or point of connection or point of connection जिसको हम कहते हैं P या point of जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई दो बेस स्टेशन हैं, टाइम T1 पे आप बेस स्टेशन 1 के साथ कनेक्टेड हैं, जबकि T2 पे आप बेस स्टेशन 2 के साथ कनेक्टेड हैं, B के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेंज करते हैं तो उस केस में ये अप्रोच उस चेंज को जो है वो डायनामिकली डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो देयर इज़ वेरी इनफ्लेक्सिबल अप्रोच। एकोमोडेट नेटवर्क फेलियर को या चेंजेस को एकोमोडेट करना वो इसके बस की बात नहीं है। इस अप्रोच को नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं इन सिनारियोस जहाँ पे आपके जो लोकल होस्ट है वो किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, राइट, और सिंगल रूटर्स हैं जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है आपके नेटवर्क को विद द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट। सो उस सिनारियो में आप जो है सच अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। एंड द सिनारियो इज आल्सो डिपिक्टेड हेयर। व्हाट यू सी हेयर, यू हैव अ लोकल नेटवर्क, राइट, उस नेटवर्क में 3 होस्ट हैं और आपका ये लोकल नेटवर्क जो है वो रूटर एक ही रूटर है जिसके थ्रू आप बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। सो इस केस में जो आपका फॉरवर्डिंग टेबल है वो स्टैटिक है, जो अप्रोच है वो स्टैटिक है, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। यू हैव 2 नेटवर्क्स। अगर कोई पैकेट that is from source to destination while both resides in the same network, let's suppose ये host इस host को कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है, so that is the entry. If you have a communication that exists inside the same system, लेकिन अगर कोई पैकेट है वो किसी दूसरे सिस्टम के लिए है और वो सिस्टम कहीं और दुनिया में लाई कर रहा है, सो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इस रूटर के थ्रू होगी। सो जो सेकेंड एंट्री है द टेबल दैट विल बी यूज फॉर डिलीवरी ऑफ द पैकेट फॉर अ सिस्टम दैट एग्जिस्ट आउटसाइड योर लोकल नेटवर्क। सो इस केस में जो है आप स्टैटिक रूटिंग अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके होस्ट जो हैं वो एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और सिर्फ एक रूटर जो है वो आपके नेटवर्क को बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो इन दिस केस यू हैव ओनली 2 एंट्रीज, वन एंट्री टू एड्रेस जिसमें एड्रेस होगा ऑफ द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, और जो सेकेंड एंट्री है उसमें एड्रेस होगा ऑफ द रूटर जो कि आपके पैकेट को रूट करेगा टुवर्ड द डेस्टिनेशन एंड द डेस्टिनेशन लाइज आउटसाइड द नेटवर्क। सो दिस इज अबाउट द स्टैटिक रूटिंग अप्रोच। Our second routing approach is called dynamic routing, और जो इंटरनेट में most of the routers हैं they use dynamic routing approaches. So for example आप देख सकते हैं इस फिगर में आपके पास we have 2 ISPs let's suppose and they are interconnected with one another and they both exchange information, routing information dynamically with one another. So each router जो है it will knows about or it will have information about the directly connected network. What does it mean? router 1 है, इसके पास network 1 की information होगी और network 3 की information होगी, और जो आपके पास router 2 है इसके पास network 2 और network 3 की information होगी. Now R1 does not know about
R1 does not know about R2, या हम कह सकते हैं कि network 1 doesn't know about network 2 और network 2 doesn't know about network 1 because they are not directly connected. So we need a mechanism कि वो भी एक दूसरे को जो है वो जान ले. दरमियान में हमें कोई नानी चाहिए जो कि इन दोनों को आपस में मिला सके. And the the this is the part where routers have to play their roles. So इस केस में we have only two networks, but in reality we have like thousands of networks available throughout the world. So think about using static routing approach in such approach जहाँ पे आपके पास thousands of networks हों. In particular उस सिनारियो में manual process is going to be far too slow to accommodate network failures, congestions in the internet, changes in the topologies, new networks, new systems joining the networks, new systems joining the networks, and new networks joining the internet. So there is going to be a very slow process. यानी उस केस में आप जो है वो static routing approach को use नहीं कर सकते. So consequently you need an alternative, and the alternative is to go for the dynamic routing approach. जहाँ पे डायनामिक अप्रोच में जो आपके पास रूटर्स हैं उन पे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, राइट और वो जो है रूट प्रोपेगेशन प्रोटोकॉल्स वहाँ पे रन कर रहे होते हैं. वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं इन ऑर्डर टू नो अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजीज, कौन कहाँ पे है, किस लिंक के साथ, किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इस केस में लेट सपोज अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें, इन द अबव एग्जांपल, ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है इसमें ये जो रूटर 1 है इट विल एक्सचेंज रूटिंग इंफॉर्मेशन विद दिस रूटर अक्रॉस दिस नेटवर्क. और ये जो रूटर 2 है इट विल एक्सचेंज इट्स रूटिंग टेबल और इंफॉर्मेशन या किस नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड है विद दिस रूटर विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क 3. सो इसके एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के रिजल्ट में क्या होगा, instantly R2 will become aware about the network 1 and R1 will become aware about the network 2 because now they have exchanged information in one another and they knows के कौन कहाँ पे है. Now अब एक और सिनारियो कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपका रूटर 2 जो है वो क्रैश कर जाए. सो इसकी जो इस लिंक की जो इंफॉर्मेशन है जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है विद नेटवर्क नंबर 3, ये चेंजेस इसको रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड देन यहाँ पे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इसका मतलब है कि अब अगर कोई नोड जो कि इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो कोई मैसेज इस नेटवर्क को सेंड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दिस नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर, और ये इन्फॉर्मेशन इस तक पहुँच गई है इन रियल टाइम और डायनामिकली, राइट. क्योंकि जैसे ही ये रूटर जो है वो फेल करता है तो ये लिंक नॉट अवेलेबल होता है और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाती है एंड देन टू दिस नेटवर्क. अब दोबारा अगर इस रूटर को हमने रिपेयर कर लिया एंड नाउ इट्स अप अगेन, इट्स फंक्शनिंग, द नेटवर्क इज़ रीचेबल, सो ये अपनी इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर करेगा एंड देन दिस रूटर विल बिकम अवेयर ऑफ द सिचुएशन के नाउ द लिंक इज़ अवेलेबल. अब अगर कोई नोड इस नेटवर्क के लिए कोई पैकेट सेंड करना चाहे तो वो पैकेट सेंड कर सकता है. नाउ द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल. अगर हम स्टैटिक अप्रोच को इस केस में यूज़ करते तो सच इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनुअली सारा कुछ करता. सो दिस वाज अबाउट द टू अप्रोचेस दैट वी हैव, स्टैटिक अप्रोच एंड डायनामिक अप्रोच. Well, now our next topic is something which is related with the categories of routing, specifically the dynamic routing. जो आपके पास डायनामिक रूटिंग का अप्रोच है इसमें we have different types of protocols और उन protocols को हम different categories में divide करते हैं. So broadly speaking, dynamic routing can be classified into two different classes. The first class is IGP and the second class is EGP, or you can say interior gateway protocol and exterior gateway protocol. मज़ीद IGP को हम डिवाइड कर सकते हैं टू फर्दर कैटेगरीज में
एंड दे आर द डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल्स एंड द लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल। और इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जिस पे अभी हम बात करेंगे, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके जो मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के रूटिंग प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे वहाँ पे मैं सिर्फ रेफरेंस दूंगा कि ये जो प्रोटोकॉल है ये डिस्टेंस वेक्टर की कैटेगरी में आता है या लिंक स्टेट की कैटेगरी में आता है। सो दैट इज़ वाई इस ओवरव्यू को मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के जो रूटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से रिवाइज हो जाए, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ द dynamic routing protocols. So at a broader level we can divide them into two types, IGP and EGP. IGP में we have distance vector and we have link state routing protocol, while in the EGP हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं path vector routing protocols, right? जो डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच है उसमें जो ज़्यादा कॉमन प्रोटोकॉल है या फेमस प्रोटोकॉल है दैट इज़ रिप एंड EIGRP। और जो लिंक स्टेट है उसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वेल नोन प्रोटोकॉल है दैट इज़ OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। सो एक प्रोटोकॉल को एज एन एग्जांपल हम देखेंगे भी कि किस तरह जो है वो रूटर्स रूटिंग टेबल्स को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड अ पैकेट, और किस तरह वो जो है कास्ट को जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि विच पाथ इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट पाथ। So let us now elaborate these categories of the routing protocols. So the first category of the dynamic routing protocol is IGP, Interior Gateway Protocol. एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। इस पे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, व्हाट डज इट मीन। ऑटोनोमस सिस्टम को समटाइम हम रूटिंग डोमेन भी कह सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ एन ऑटोनोमस सिस्टम लाइक अ contiguous set of networks and routers that are under the control of a single administrative authority. कोई नेटवर्क है और कोई एक बंदा उसको चला रहा है, that is under the control of a single administrative authority, उसको हम ऑटोनोमस सिस्टम कह सकते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम आपके पास ISP लेवल पे भी हो सकता है, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सो एंटायर कॉर्पोरेशन है, वो भी हो सकती है, उसको भी आप ऑटोनोमस सिस्टम कह सकते हैं। इवन अगर कोई यूनिवर्सिटी है और उसका अपना सेटअप है तो उसको भी आप जो है ऑटोनोमस सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। सो जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं इसमें जो रूटर्स हैं विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रूटर्स हैं, दे यूजेस IGP protocols in order to exchange the routing information. Okay? यानी IGP के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नॉर्मली हम विद इन ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर रूटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कम्युनिकेशन करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम, the entity that is under the control of a single administrative authority, उसको हम ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। तो अगर इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आपने रूटिंग करनी है तो उसके लिए जो रूटर्स हम यूज़ करते हैं, इस अप्रोच को हम कहते हैं कि ये हमारे पास IGP का अप्रोच है। On the other side we have the EGP, Exterior Gateway Protocol, and that is the opposite. इसमें क्या होता है कि आपके पास एक रूटर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर किसी दूसरे रूटर के साथ जो कि किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर है उसके साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहें तो उस केस में जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे दैट इज़ EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, यानी विद इन ऑटोनोमस सिस्टम IGP, बिटवीन टू डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम EGP। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। आपके पास दो सेक्शंस हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर अगर आपने, जो कि आपके अपने फ्रेंड्स हैं, अगर आपने सेक्शन A के किसी स्टूडेंट के साथ बात करनी है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर फॉर एग्जांपल। लेकिन सेक्शन B के किसी स्टूडेंट के साथ अगर आपने बात करनी है तो वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप वो बात अपने टीचर को बताएंगे और आपका टीचर उसके टीचर को बताएगा और उसका टीचर जो है फिर आगे स्टूडेंट को जो है वो बात फॉरवर्ड करेगा।
So to put it to put it in simple words, communication within the autonomous system, that is interior. Communication between two autonomous system, that is exterior gateway protocol. अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन होगा, IGP और EGP, सो नॉर्मली जो EGP अप्रोच है दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि उसको इंस्टॉल करना, उसको ऑपरेट करना, दैट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सो हु इज़ गोइंग टू बी मोर फ्लेक्सिबल, EGP इज़ गोइंग टू बी मोर फ्लेक्सिबल. और उसमें जो है वो ओवरहेड भी लो है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम है. विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा होता है. नॉर्मली हमारे पास जो बिटवीन टू ऑटोनोमस सिस्टम है वो ट्रैफिक थोड़ा सा कम होता है. और इसके अलावा लो ओवरहेड का मतलब ये भी है कि जो EGP के केस में जो रूटर्स जो इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते हैं, द इंफॉर्मेशन इज़ लाइक अ समरी ऑफ द होल नेटवर्क, राइट. फॉर एग्जांपल R1 अगर अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर करना चाहे, सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ समरी ऑफ दिस नेटवर्क. इसी तरह R4 अगर अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर करना चाहे, सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ समरी ऑफ दिस नेटवर्क ऑटोनोमस सिस्टम 2. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे लो ओवरहेड है. Now let us explain the figure here. In the figure you see two autonomous system, autonomous system 1 and autonomous system 2. autonomous system 1 ने IGP1 को यूज़ किया है for internal communication और autonomous system 2 ने IGP को यूज़ किया है for internal communication within this autonomous system. Okay? ये कोई प्रोटोकॉल हो सकते हैं IGP1 और IGP2. Okay. Now let us see. इस autonomous system 1 में जितने भी रूटर्स हैं like R1, R2 and R3, अगर ये आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें तो वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ IGP1. इस ऑटोनोमस सिस्टम 2 में जो रूटर्स हैं, रूटर 4, 5 एंड 6, ये अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें तो वो कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ IGP2. अब अगर हम बात करें कम्युनिकेशन बिटवीन रूटर 1 एंड रूटर 4, तो ये अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें तो ये किसको यूज़ करेंगे, EGP को, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बिटवीन टू ऑटोनोमस सिस्टम. कौन सी कम्युनिकेशन होगी, R1 जो है इट मस्ट समराइज इंफॉर्मेशन from its autonomous system and send the summary of the information to R4, and same is the case with R4 कि ये अपनी नेटवर्क की समरी जो है वो R1 के साथ शेयर करेगी. So this was about interior and exterior gateway protocols. अब अगर आप इस कैटेगराइजेशन में देखें इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को फिर मज़ीद हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. अब उसको एलेबोरेट करते हैं. The first category is called distance vector routing protocol. Distance vector routing protocol, that is an oldest routing protocol, but still it is in use today. Why? Because it is simple protocol. इसको configure करना, इसको maintain रखना और इसको जो है वो use करना, that is simple. Internally ये जो routing प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन एन एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम. उस एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो आपके पास जो रूटर्स हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम विल हेल्प टू डिटरमाइन विच नेटवर्क पाथ इज़ द शॉर्टेस्ट एंड विच नेटवर्क पाथ इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल रूट टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन. किस तरह उसको आइडेंटिफाई किया जाए और सेलेक्ट किया जाए, because routing is all about forwarding the packets toward the destinations और इसके साथ बेस्ट रूट को सेलेक्ट करना. अब बेस्ट रूट को सेलेक्ट करने के लिए they need a mechanism और उस mechanism के लिए they need an algorithm, and the algorithm that these protocols are using उसको हम कहते हैं Bellman Ford algorithm. So it will actually help them to determine which network path is the shortest and most prefer रूट टूवर्ड द डेस्टिनेशन. इन प्रोटोकॉल्स की जो सबसे
इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल distance vector, they do not have the knowledge of the entire path to a destination network. दो अप्रोचेस हैं. एक अप्रोच में आपके पास पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी पहले से वो पता होती है. सेकेंड अप्रोच में यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द एंटायर नेटवर्क, एंटायर टोपोलॉजी, but you know only about who is your neighbor, one hop neighbor or two hop neighbor, कौन आपके करीब करीब रह रहा है. सो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे डू नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द इंटायर पाथ टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन नेटवर्क, या पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी का इनको पता नहीं होता. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि they do not have an actual map of the network topology, right? अब जब उनके पास पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में उसको इल्म नहीं है, so how they establish the link toward the destination. So in such approach, in such type of routing approach, जो आपके पास नोड है, they create, हर एक नोड जो है वो अपने लीस्ट कॉस्ट ट्री को जो है वो बनाती है, and then it share the least cost tree with its immediate neighbors. The tree is incomplete, but the incomplete trees are exchanged between the immediate neighbors to make the tree more and more complete in order to know about the whole network. So we can say कि distance vector routing में जो आपके पास router है, it will continuously tell all of its neighbor that it knows about the whole internet, right? Sorry. इस केस में अगर कहीं पे कोई फेलर आ जाए या कहीं पे नेटवर्क की टोपोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, so it will require some time for the routers to converge on understanding the new network topology. इस कैटेगरी के कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हमारे पास रिप है और EIGRP है, और इसके अलावा IGRP भी एक प्रोटोकॉल है that fall under this category. We also have the second category of protocol, and that is called the link state protocol. Generally जो link state protocol होते हैं they are more robust than distance vector protocol. Because क्यों वो more robust हैं? Because they are used because इन इस रोबस्टनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको हम लार्जर नेटवर्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं. इनके जो एल्गोरिथम्स हैं वो मोर एडवांस्ड हैं, और बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए जो एल्गोरिथम ये यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डाइक्स्ट्रा, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट पाथ अवेलेबल टुवर्ड द डेस्टिनेशन. जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल का वो ये है कि दीज प्रोटोकॉल मेंटेन अ कॉम्प्लेक्स डेटाबेस ऑफ द होल नेटवर्क टोपोलॉजी. अनलाइक द डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, जहाँ पे लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स जो है वो फुल नॉलेज ऑफ द network router as well as how they are interconnected, they will maintain such type of information. So आप कह सकते हैं कि जो link state routing protocol है they are very much useful in networks of any size. लेकिन on the other side जो आपके पास link state routing protocol है, चूंकि इसके पास पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी किसी भी टाइम पे अवेलेबल होती है, इसके पास पूरे नेटवर्क का मैप अवेलेबल होता है, सो दे वुड रिक्वायर मोर रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ CPU आवर्स और इन टर्म ऑफ मेमोरी, इसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए. सो लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल जो है दे कैन ट्रांसमिट देयर रूटिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर रूटर्स रनिंग द सेम प्रोटोकॉल, नॉट जस्ट द डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स. जो इसका कज़न है जिसको हम डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल्स, वहाँ पे
उनमें नोड्स के पास सिर्फ नेबरहुड की इन्फॉर्मेशन होती है, दे एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। लेकिन इस केस में लिंक स्टेट के प्रोटोकॉल के केस में जो आपके पास रूटर्स होते हैं, दे एक्चुअली transmit the routing information not only with the neighbors but with all the routers running the running the same protocols. And how they achieve this process? Actually यहाँ पे कुछ हमारे पास अपडेट्स होती हैं जो कि ये प्रोटोकॉल सेंड करते हैं। उन अपडेट्स को हम कहते हैं लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट और LSA। तो बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट messages, they update the information about the whole network topology. Okay, so ये दोनों में main different था कि distance vector protocol में only available information of the neighborhoods, while in the link state routing protocol you actually have the information about the whole network topology or whole network map is available. अब एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोटोकॉल को हम स्टडी करते हैं एंड द प्रोटोकॉल इज़ रिप रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब अगर आप कैटेगरीज पे आएँ, सो डायनामिक रूटिंग को पहले हमने रूटिंग को डिवाइड किया इनटू 2 कैटेगरीज, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक सिंपल अप्रोच, प्री प्रोग्राम्ड अप्रोच, मैनुअल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनुअली सब कुछ करता है। डायनामिक इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोच, मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच, मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच, मोर स्केलेबल अप्रोच। फिर डायनामिक को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दोनों को हमने देखा कि इंटीरियर किसे कहते हैं और एक्सटीरियर किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि इंटीरियर की जो 2 कैटेगरीज हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, उन दोनों में क्या डिफरेंट है, उस पर हमने बात की। नाउ द लास्ट थिंग इज़ के लेट अस सी कि हाउ द रूटिंग एक्चुअली वर्क। तो उसमें हम एक प्रोटोकॉल को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ रिप। रिप के फिर मजीद वर्जन है, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2। तो कोई भी वर्जन हो, द मैकेनिज्म इज़ ऑलमोस्ट द सेम। सो ये किस कैटेगरी का है अगर आपसे पूछा जाए कि रिप किस कैटेगरी का प्रोटोकॉल है, सो द फर्स्ट थिंग इज कि इट इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, and then it is also IGP protocol, and then it come under the category of a dynamic routing protocol. So RIP को हम पढ़ते हैं। well RIP के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट है कि that is a first anterior gateway protocol used in the internet, among one of the first protocol that were used in the internet, like the foundation protocol of the internet, most widely used। और ये इंट्रा डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल है। रिमेंबर इंट्रा एंड इंट्रा मीन विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम। अगर आपकी रूटिंग है तो उस केस में रिप को आप यूज़ कर सकते हैं। रिप प्रोटोकॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सो यू वुड रिक्वायर वेरी लिटिल कॉन्फ़िगरेशन। जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो जो है वो रिप को स्टार्ट करेगा, रन करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा ऑन द रूटर इन द ऑर्गेनाइजेशन, and then it will allows the routers to broadcast messages to one another, and after a short period of time जितने भी आपके पास routers है in the organization, they will come to know about the routes to all the destinations. So RIP actually handle the propagation of default routes towards the system to which it is connected, the router is connected. Okay, किस तरह इसका mechanism है? Actually it uses a broadcast mechanism to propagate यानी जो routers हैं वो messages broadcast करते हैं to one another, और फिर all routers within the organizations, they will have routes available to all the destinations. Such type of network में shortest path को find करने के लिए different parameters जो है वो available हैं। cost के तौर पे आप उसको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट को आप ले सकते हैं कि नंबर ऑफ़ हॉप्स जितने कम होंगी उतना कॉस्ट आपका कम होगा, उतना जो है वो रूट आपके पास शॉर्टेस्ट रूट होगा। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ़ हॉप इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, आप अदर पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिले को देख सकते हैं, आप अवेलेबल बैंडविड्थ को देख सकते हैं, एंड प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ट्रैफिक को आप देख सकते हैं उस लिंक पे, उस रूट पे। So let us see an example of how the RIP
is functioning, or let us see RIP in action. So what you see here is different networks, and they are connected by different routers. So we have network N1, N2, N3 and N4, and we have three routers R1, R2 and R3, and we also have switches जो कि same systems को आपस में connect कर रही हैं within the same network. Sorry, मेरा गला बैठ गया. So अगर हम देखें तो ये जो router 1 है R1, ये actually connect कर रहा है N1 और N2 को डायरेक्टली. R2 जो है ये N2 एंड N3 को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, और R3 जो है ये N3 और N4 को आपस में कनेक्ट कर रहा है. Suppose our destination is here in this network, and our source is here in this network N1, and our destination lies somewhere in the network 4, right? Okay, जो कास्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लिंक से रिलेटेड, that is hop. Hop mean the number of jumps required to send a packet toward the destination. For example, इस केस में अगर R3 and 4 को कोई पैकेट सेंड करे, so the number of hop is 1. R2 अगर N4 को कोई पैकेट सेंड करना चाहे, so the number of hop is 2. पहले यहाँ पे पैकेट आएगा और फिर यहाँ पे. R1 अगर N4 को कोई पैकेट सेंड करे, so in this case the cost is 3 hop. Hop number 1, hop number 2, and then to the final destination hop 3. So this is a 1 hop network, 2 hop network and 3 hop network. अब हमने जो है रूटिंग टेबल्स को, या रूटर्स ने जो है वो रूटिंग टेबल्स को जो है वो इस्टेब्लिश करना है. किस तरह? लेट अस सी. जो रिप के केस में जो आपके पास फॉरवर्डिंग टेबल है या रूटिंग टेबल, दे आर एक्चुअली मेड ऑफ 3 डिफरेंट कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम, that is the address of the destination network. Second column is the address of the next router to which the packet should be forwarded. और जो आपके पास third column है, that is actually the cost. और इस केस में हमारे पास cost क्या है? Number of hops. But you can also use some other parameters for the cost as well. इस पे हमने बात की. Okay, so we have 3 columns here. The first column destination network, second column is the next available network, and the third column is the cost. अब अगर आप इस router के forwarding table को देखें, so that is here. Networks आपके पास same है N1, N2, N3 and N4. So the destination column is same for all N1, N2, N3 and N4, right? जो आपके पास next router है वो different है. For example, अगर N1 को कोई पैकेट सेंड करेगा, तो ऑब्वियसली कोई रूटर दरमियान में अवेलेबल नहीं है, वो आप स्विच के ज़रिए भी कर सकते हैं. सो द नंबर ऑफ हॉप इज़ 1. अगर रूटर 1 N2 को कोई पैकेट सेंड करता है, राइट, सो वो आप इजीली कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड. सो द नंबर ऑफ हॉप हियर इज़ 1 एज वेल. आप कंसिडर करें सिनारियो को कि अगर रूटर 1 रूटर 2 को कोई पैकेट सेंड करेगा, सो हाउ मेनी हॉप्स आर, सॉरी, अगर रूटर 1 N3 को कोई पैकेट सेंड करेगा, सो हाउ मेनी हॉप्स आर रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट द पैकेट विल गो टू R2. यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट रूटर आपके पास क्या होगा? R2. और यहाँ पे जब पैकेट आएगा, तो चूंकि ये N3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो द नेक्स्ट हॉप इज गोइंग टू बी between R2 and N3. So यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हॉप्स जो है वो 2 है. अब कंसिडर करें कि यू हैव अ पैकेट हेयर एट R1 और आप उसको सेंड करने जा रहे हैं टू N4, नेटवर्क N4. सो हाउ मेनी हॉप्स यू विल हैव टू टेक? पहले आपका पैकेट जो है R1 से R2 पे आएगा, फिर R2 से R3 पे आएगा, एंड देन R3 से जो है वो N4 पे आएगा. सो द नंबर ऑफ हॉप्स रिक्वायर्ड हेयर आर 3. और इस केस में जो आपके पास नेक्स्ट रूटर अवेलेबल है वो N2 है. अब अगर हम बात करें R2 की, फॉरवर्डिंग टेबल फॉर द रूटर R2, यहाँ पे आप देखें,
सबसे पहले देखें कि ये किन दो नेटवर्क्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो यहाँ पे ये N2 और N3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो N2 एंड N3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो द नंबर ऑफ हॉप्स आर 1। अब देखिए N1 को और N4 को, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सो अगर R2 N1 के लिए कोई पैकेट सेंड करेगा, सो द नंबर ऑफ हॉप्स रिक्वायर्ड इज़ 1 एंड 2, 2 हॉप्स। सो यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं। इसी तरह N4 के लिए अगर कोई पैकेट है, सो द नंबर ऑफ हॉप्स आर 2 अगेन, पहले 1 हॉप एंड देन सेकेंड हॉप। सो यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं। नाउ लेट अस सी द फॉरवर्डिंग टेबल फॉर R3, दिस रूटर। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? N3 एंड N4। सो N3 एंड N4 के लिए द हॉप इज़ 1, डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए हॉप 1। अब हम बात करते हैं N2 और N1 की। तो अगर N2 के लिए कोई पैकेट है, सो द नंबर ऑफ हॉप इज़ 2। N2 के लिए अगर कोई पैकेट है, द नंबर ऑफ हॉप इज़ 2, द कॉस्ट इज़ 2, और नेक्स्ट अवेलेबल रूटर इज़ R2। इसी तरह अगर N1 के लिए कोई पैकेट है, सो द नंबर ऑफ हॉप इज़ 1, 2, 1, 2 and 3. So here you see 3, and the next router available is R2. So this is how we use the routing protocols. अब ये हर एक रूटर जो है अपनी जो टेबल्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर करेगा इन ऑर्डर टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये टेबल्स आपकी एक्चुअली हेल्प कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने R1 की हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर कोई पैकेट है, हाँ वी हैव एन एग्ज़ाम्पल हेयर, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ अगर आपने कोई पैकेट सेंड करना है, सो आप किस तरह उसको सेंड करेंगे? सबसे पहला काम, आप अपने सिस्टम से जो आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड रूटर है, सिर्फ आपको उसकी इंफॉर्मेशन का पता है, राइट? सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन का आपको पता है, बिकॉज सच टाइप ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स में यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली द नेक्स्ट रूटर अवेलेबल। तो आप क्या करते हैं कि आप अपना पैकेट रूटर 1 के हवाले कर देते हैं। अब रूटर 1 क्या करता है? वो देखता है डेस्टिनेशन को। डेस्टिनेशन क्या है? N4 है। तो अपने टेबल को वो देखता है, ओके N4, किसको मैंने हवाले करना है ये पैकेट? N2। अब इसको पूरे नेटवर्क का नहीं पता, बिकॉज N4 किसके साथ कनेक्टेड है? R3 के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन? R2 की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो ये रूटर क्या करता है? ये सिर्फ पैकेट को फॉरवर्ड करता है टूवर्ड द R2। The packet is for N4 but the next router is R2। तो ये अपना पैकेट इसके हवाले कर देता है, hey I have a packet, और मुझे पता है कि आपको डेस्टिनेशन का पता है, so you have to forward my packet on my behalf। अब जैसे ही पैकेट R2 के पास आता है, वो डेस्टिनेशन को देखता है। डेस्टिनेशन क्या है पैकेट की? N4। तो ये अपने टेबल को कंसल्ट करेगा N4। ये इसके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ओके मेरे पास तो ये डेस्टिनेशन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपका पैकेट मैं R3 के हवाले कर देता हूँ, वो जाने उसका काम जाने। सो पैकेट आपके पास नेक्स्ट हॉप पे आएगा टूवर्ड R3। अब जैसे ही पैकेट इस रूटर को मिलता है, ये अपने टेबल को देखेगा, द पैकेट इज़ फॉर N4, ये टेबल में देखेगा N4। इसको पता चलेगा कि ये तो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 हॉप के फासले पे है, तो बाकी किसी दूसरे रूटर को मैंने फॉरवर्ड नहीं करना, सिस्टम को मैंने दे देना है, स्विच को मैंने फॉरवर्ड कर देना है, और जो है स्विच जो है वो फिर आपके जो डेस्टिनेशन नोड है उसको जो है आपका पैकेट वो फॉरवर्ड कर देगा। So this is explanation of how RIP built the routing information and how they use the cost information and how they forward the packet from source towards destination. So this was the first half of today's lecture. इंशाल्लाह सेकेंड हाफ में अब आप लोगों का जो है वो रूटिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड बन गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इशू स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। सो let us take a short break and I will catch you up in the second half of this lecture. Till then, Allah Hafiz.